سکتا ہے, کبھی بیانات سن لیے. ایک عام آدمی کس طرح یہ پہچان سکتا ہے کہ حقیقی اہل سنت کون ہے؟ کیونکہ کھول کر باتیں بتائی جا رہی ہیں اور بنائی جا رہی ہیں کہ فلاں نے یہ غلطی کی, فلاں نے یہ کیا, تو سب ہی غلط لگتے ہیں یا سبھی صحیح لگتے ہیں. تو ایسے میں عام بندہ کیا کرے, وہ کیسے پہچانے کہ حقیقی اہل سنت کون ہے؟ اصل میں نا اس کے پیچھے کچھ فیڈنگز ہیں جن کو پہلے سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. بعض لوگ جنہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا تھا, انہوں نے تمام تر جتنے فرقے ہیں, ان کے جتنے عقائد ہیں, ان سب کو پسے پوش ڈال کر انہوں نے کہا یہ سارے ان کے آپس کے جھگڑے ہیں, لہٰذا ہم تو صرف مسلمان ہیں. انہوں نے پہلے یہ ذہن بنایا, پہلے یہ گراؤنڈ تیار کیا, پہلے یہ ٹریک تیار کیا, اس کے اوپر قوم کو لگایا. اب انہوں نے کہا جی ہمیں تو بھائی کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا, اس میں ہمارے جیسے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں, وہ بھی تھوڑا جب اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں یار کیا ہے یہ سارے اختلافات, آپ چھوڑو ہم مسلمان ہیں. تو اس کے جو اصل بنیاد ہے نا, پہلے تو اس کو پاچ پاچ کرنا ہوگا, اور وہ اس انداز میں ہے کہ اگر آپ مطالعہ کریں قرآن کا, احادیث کا, تفاسیر کا اور محدثین کا, آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں, آخر یہ لفظ اہل سنت کہیں سے تو آیا ہے نا. اور پھر یہ اتنا مقبول کیوں ہو گیا کہ اہل سنت جو حقیقی ہیں وہ تو ہے ہی ہے, جو نہیں ہے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اہل سنت ہوں. یعنی جو کل تک کہتا تھا کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا, میں کسی بابے کو نہیں مانتا, وہ بھی آج کہتا حقیقی اہل سنت میں ہوں. آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب ہے حقیقی اہل سنت مسلمان ہونے کے بعد کسی چیز کو تو تم نے بھی تسلیم کر لیا نا. کیا ضرورت پیش آئی آپ کو اس لفظ کے پیچھے بھاگنے کی؟ آپ کی تو 10 سالہ محنت ہے کہ میں تو صرف مسلمان ہوں, میں تو جناب نہ کتابی ہوں نہ بابی ہوں, میں صرف علمی کتابی ہوں. تو اگر اتنی بات ہے تو آپ اہل سنت کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے خود سنا ہے, کیا ضرورت پیش آئی اس کی؟ اس کا مطلب ہے اس لفظ میں کوئی دم ہے, کوئی طاقت ہے, اور یہی اصل بنیاد ہے کہ جو تمہاری اب ضرورت بن رہا ہے. کیا بات, کیا بات, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, آپ دیکھیں مقدمہ صحیح مسلم شریف کو آپ پڑھ کے دیکھیں, اس کے اندر لکھا ہے کہ جب فتنہ بپا ہونے کے بعد راویوں کے بارے میں سوال ہوتا تھا تو کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے تھے کہ یہ راوی اہل سنت ہے یا نہیں ہے. اگر اہل سنت ہوتا تو اس کو معتبر و مستند و معتبر سمجھ کر ہم اس کی روایت کو قبول کر لیتے تھے, اور اگر وہ اہل سنت نہیں ہوتا تھا تو اس کی مکمل تحقیق و تفتیش کے بعد اس کو یا رد کر دیا جاتا تھا یا علماء کی عدالت میں پیش کر دیا جاتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو کتابوں کے حوالے دیتے ہیں میں ان کتابوں کو مانتا ہوں, تو میرے بھائی کتاب کی حدیث پڑھنے سے پہلے مقدمہ بھی پڑھ لو, بزرگوں نے لکھا کیا ہے, وہاں تو لفظ اہل سنت موجود ہے. اور وہ تو کہتے ہیں ایسا بندہ جو سنی نہیں ہے, اہل سنت نہیں ہے, ہم تو اس کی روایت کو نہیں لیتے. تو جو اہل سنت کی روایت کو نہیں لیتے, ان کی کتابیں پڑھ کے واردات کرنے والوں, جب تم اہل سنت نہیں تو تمہیں کون قبول کرے گا؟ یہ پہلی بات. اب دوسری بات سمجھیے گا, یہ اصل میں مرز وجود میں کیوں آیا, اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں اپنے سادہ طالب علمانہ لہجے میں عرض کروں اور لوگ اور ناظرین توجہ فرمائیں. وہ یہ ہے, دیکھیے جب مسلمان کہلانے والے قرون اولیٰ میں یہی لوگ تھے جو مسلمان کہلاتے تھے, لیکن جب اختلاف بڑھا نا اور مسلمان کہلانے والوں میں 3 فرقے مرز وجود میں آئے. ایک کا نام تھا جبریہ, ایک کا نام تھا قدریہ, ایک کا نام تھا معتزلہ. ٹھیک ہے. اچھا, ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں. اگر دیکھا جائے نا تو کوئی 10 20 40 مسئلوں میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا. انہوں نے تقدیر کے مسئلے میں اختلاف کیا. کوئی کہتا ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں ہم پر جبر ہے, وہ جبریہ بن گئے. کوئی کہتے ہیں تقدیر کے مسئلے میں جو لکھا ہوا وہی ہے, وہ قدریہ بن گئے. اور کئیوں نے شفاعت اور نبی پاک علیہ السلام کے باقی معاملات کا انکار کیا, وہ معتزلہ بن گئے. یعنی چند پوائنٹس پر ان کا اختلاف تھا. اب مسلمان کہلاتے تھے لیکن نظریہ انہوں نے بدل لیا, اپنا ٹریک بدل لیا, صحابہ سے, تابعین سے اور تبع تابعین سے. جب انہوں نے بدلنے کی کوشش کی تو اس وقت علماء نے سر جوڑا کہ یار مسلمان کہلانے والے اگر یہ ٹریک لوگوں کو دیتے رہیں گے تو پھر اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے ہوگی. تو اس وقت انہوں نے کہا وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی, ما انا علیہ اس سے مراد سنت رسول ہے, ٹھیک ہے, اور اصحابی سے مراد جماعت ہے, اہل سنت و جماعت, ان 2 لفظوں کو جوڑ کر پھر نکالا گیا. اور یہی محدثین میں مقبول ہے اور یہی فقہاء میں مقبول ہے, اور یہی وہ لفظ تھا جس کو اس وقت کے تمام علماء, ائمہ, محدثین, صلحاء, فصحاء, علماء, بلغاء, ان سب نے کہا کہ اب اس لفظ کو حقیقی مسلمان کا معیار قرار دیا جائے. مسلمان وہ بھی کہلاتے تھے لیکن جب جبریہ آ گیا فارغ ہو گیا, قدریہ آ گیا فارغ ہو گیا,
मुतज़िला आ गया, फारिग हो गया। अब कौन सा मुसलमान चलेगा? जो अहलुस सुन्नत वल जमाआ वाह होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये जरूरत पेश आई। अच्छा, ये लफ्ज फिर किसने इतना उजागर किया और इन फिरकों का रद्द बलीग किया? वो दो इमाम थे। एक इमाम अबुल हसन अशारी थे रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे इमाम अबू मंसूर मातुरीदी थे रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन दोनों ने इनका रद्द बलीग किया और इनके रद्द को इतना आम किया कि समझो कि बच्चे बच्चे तक बात पहुंचाई, और अहले सुन्नत और कुरान और हदीस का जो असली मग़ज़ और रूह और अकीदा हक़ का था उसको लोगों तक वाज़े करके बताया कि ये वो बातिल फिरके हैं जो मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन इन मसाइल की वजह से ये मुसलमानियत तो नहीं, अहले सुन्नत के दायरे से फारिग हो गए। अच्छा, कुछ हदें होती हैं, वो छू जाएं तो मुसलमानियत से भी फारिग हो जाते हैं। वो मेरा मौजू नहीं है, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि फिर इसके मुकाबिल लफ्ज क्या है, तो उन्होंने अहलुस सुन्नत वल जमाआ का लफ्ज दिया, और उसी पर उलमा, आइमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा, सारे उसूलियीन उसी पर मुत्तफिक हो गए। ये जमाना चलता। अब उस वक्त किसी ने नहीं कहा जब हम मुसलमान हैं तो फिर अहलुस सुन्नत जमात का क्या मतलब है। वो सारे समझते थे कि मुसलमान तो ये बदनसीबी कह रहे हैं, जिब्रिया भी, किदरिया भी, मुतज़िला भी, तो ये तशरीहात दीन की बदल रहे हैं। लिहाजा अब हकीकी मुसलमान के लिए अहलुस सुन्नत वल जमाआ का निशान आ गया, टैग आ गया, मोनोग्राम आ गया, पहचान आ गई, उनके सर के ताज का हीरा आ गया। तो जो अहले सुन्नत वल जमात कहलाता था वो सच्चा, बाकी सब फारिग। जमाना चलता रहा, अहलुस सुन्नत के नाम पर ये काम, बाकी जितने फिरके आते वो बातिल कहलाते। अहलुस सुन्नत वल जमाआ का जब लफ्ज आ जाता वो मोतबर, मुस्तनद माना जाता था। जब दौर आया इमाम अहमद रजा का, उस दौर के अंदर अहलुस सुन्नत कहलाने वालों ने फिर डंडी मारने की कोशिश की। उन्होंने आका करीम अलैहि सलाम के इल्मे गैब, शान इख्तियारात, शान हाजिर व नाजिर और जुमला बाकी चीज़ों में जिसमें शफाअत भी है और जिसमें इख्तियारात औलिया भी है, और बाद के अंदर और मसाइल में इख्तलाफ जब शुरू किया तो फिर इनका रद्द बली किया आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान। और जब यानी पहले था मुसलमानों में इख्तलाफ हुआ तो जिब्रिया, किदरिया, मुतज़िला अलग हुए तो अहलुस सुन्नत का लफ्ज आ गया। अब जब अहलुस सुन्नत में ऐसे लोग पैदा होने लगे तो आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द बलीग करके लोगों के सामने वाज़े किया कि इनके ये अकायद हैं। अरब क्या, अजम क्या, सब उलमा को वाज़े किया और सब ने इनके खिलाफ फतवे जारी किए। और फिर हकीकी अहलुस सुन्नत के लिए या मसलक रजा का लफ्ज आया या फिक्र रजा का लफ्ज आया, और मशहूर लफ्ज है बरेलवी। इसके बाद आया था कि अहलुस सुन्नत में इतने इख्तलाफ करने वाले मौजूद हैं, वो अपने आप को अहलुस सुन्नत जनाब हनफी और साथ में आगे कई लाहिके और साबिके मिलाते हैं, तो उनमें से हकीकी कौन होगा? फरमाया जिस तरह इमाम अबुल हसन अशरी और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी उन्होंने हक को वाज़े किया तो अहले सुन्नत का निशान आया। अब अहलुस सुन्नत में छुपे हुए लोगों को वाज़े करके जो असल निशान और असल अहले सुन्नत है उनके साथ लफ्ज़ बरेलवी बोला जाएगा, ताकि पता चले कि डालडा घी कौन सा है और असली घी कौन सा है। इसलिए इस लफ्ज़ को वाज़े किया गया। और वो बात, ये हज़रत शाह साहब ने जो बात की है ना, वो बात ऐसे ही हवा में तीर नहीं था कि इमाम अहमद बिन हंबल से जो मोहब्बत करेगा वो पक्का सुन्नी होगा, इस दौर में जो इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करेगा वो पक्का सुन्नी होगा। ये बात जो हज़रत शाह साहब ने फरमाई है, ये बात मैंने लिखी है, ये शेख मोहम्मद अलवी मालकी काज़ी मक्का, ठीक है, इन्होंने लिखी है बकायदा अपनी कुतुब के अंदर। कहते हैं नहनो नारिफहू बेतसनीफात ही, हमने अहमद रजा को पहचाना है उनकी तसनीफात, उनके फतावा और जो बदमजहबियत का उन्होंने रद्द बली किया उसकी वजह से। और कहते हैं अब है क्या ये, हुब्बहू अलामतुस सुन्नह व बुग़्दुहू अलामतुल बिदअह। फरमाया अहमद रजा की मोहब्बत अहले सुन्नत होने की निशानी है और अहमद रजा का बुग़्ज़। लंच बनाने आई तो सारी वेजेस खत्म हो चुकी थी। फिर याद आया फ्लिपकार्ट मिनट, बस ऐप खोली और अपने पसंद की वेजेस सिलेक्ट करी। यहाँ मिलती हैं बिल्कुल फ्रेश वेजेस, वो भी 9 रुपीज में। इतनी अच्छे डील्स एंड ऑफर्स आपको मिलते हैं। 199 के ऑर्डर पर मिल रही थी चीजें 1-1 रुपए में, तो इतनी अच्छी डील कहीं नहीं मिलेगी। तो बस 10 मिनट में मुझे मेरा ऑर्डर रिसीव हो गया और एकदम फार्म फ्रेश वेजेस मुझे रिसीव हुई हैं और बहुत ही ज्यादा क्लीन भी थी। आप भी जरूर ट्राई करो फ्लिपकार्ट मिनट्स एंड गेट योर वेजेस ओनली इन 9 रुपीज इन जस्ट 10 मिनट्स। के बिदअती और बदमज़हब होने की अलामत। काज़ी मक्का कह रहे हैं, ये काज़ी मक्का कह रहे हैं, ये काज़ी मक्का ने इस बात को इरशाद फरमाया। अच्छा, ये बात यहां तक, यानी बैकग्राउंड पसे मंजर तो समझ आए ना। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि हम मुसलमान ही ठीक हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये मुसलमान कहलाने वाले जिब्रिया, किदरिया, मुतज़िला, इनको किधर डालोगे? अच्छा, तो फिर असली मुसलमान के लिए हम अहलुस सुन्नत है। किसी ने नहीं कहा अहलुस सुन्नत क्या मुसलमान नहीं होते। मुसलमानों का जो
22 कैरेट बल्कि 24 कैरेट का जो सोना होता है उसका नाम अहलुस सुन्ना वल जमात। वाह, 24 वाह, कैरेट वाह, जिसमें सुभान। किसी किस्म का मिलावट और खोट बहुत अच्छे। नहीं होता। वाह, वाह। और फिर जब इसको दागदार करने की कोशिश की गई तो अब इमाम अहमद रजा का नाम निशान बन गया। अगर आप मौसूआ लिल अदियान वल मज़ाहिब उसको पढ़ के देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ अहलुस सुन्ना वल जमात ये होते कौन है? यानी जो कहते हैं क्या हम मुसलमान ही काफी, भाई अहले सुन्नत यही तो असल मुसलमान है। वो कैसे? अल मुतमस्सिकूना बेसुन्नत रसूलिल्लाह, इनकी पहली निशानी ये होती है कि ये हुजूर की सुन्नत से तमस्सुक करते हैं। कोई इनका अपना नजरिया नहीं होता, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मौजूद तमाम चीजों से इस्तिंबात करके फिर लोगों की इस्लाह करते हैं, अपनी इख्तिरा और अपनी राय पर नहीं वाह, होता। सुभान अल्लाह। दूसरी बात, अत्तारिकूना बिदअल मुब्तदिईन, वो कहते हैं कि ये जो अहले सुन्नत होते हैं ये हर बिदती हर बद मजहब उसको तर्क भी करते हैं, हर बिदत को भी तर्क करते हैं और हर बद मजहब को भी अपने से निकालकर छांट के पीछे कर देते हैं। आगे वजाहत अहले सुन्ना कौन होते हैं। तीसरी बात फरमा अस्साबितून मअल जमाआ, ये हमेशा जमाअत के साथ वाबस्ता रहते हैं और इस जमात से मुराद दो चीजें हैं, एक वो जमात जो जमात सहाबा किराम है और दूसरी जो उनकी तकलीद में जिसको सवाद आजम कहा जाता है। और ये क़यामत तक अहले हक की जमात रहेगी, यानी जो सहाबा किराम की जमात के अकायद और नजरियात थे उन्हीं का फरोग और उन्हीं को वाज़े करने वाली जमात के साथ रहने वाले ये अहले सुन्नत होते हैं। क्या कहने, यानी अहले सुन्नत का दलाइल कुरान और हदीस से हम तमस्सुक करते हैं, बिदती और बिदत को अपने करीब नहीं आने देते। वाह, वाह, और रह गई बात हमारी, तो हमारा शजरा तो सहाबा किराम तक जाता है, तुम बताओ तुम्हारा शजरा कहां जाता है। हो। ये असल बात है जिसको समझना चाहिए और जिसको वाजे कर दिया गया। सुभान अच्छा, ये था पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा इस सवाल का जल्दी में अर्ज कर दूं। जी। किताबें खोल के बताते हैं फलाने ये लिखा, फलाने ये लिखा, फलाने ये लिखा, फलाने ये लिखा। पहली बात, हमारे उलमा ने लिखा है कुरान के अलावा कोई किताब ऐसी नहीं जिसमें हर बात हक हो और सच हो। पहली बात, उसके अंदर इल्हाकात भी हो सकते हैं, तसामुहात भी हो सकते हैं, इजाफात भी हो सकते हैं। ठीक है, जब कुरान हक और सच है और उसके बाद किसी भी किताब में हर बात हक हो ये जरूरी नहीं है, तो फिर शोर मचाने की क्या जरूरत है, फलाने ये लिखा, फलाने ये लिखा। तो कहते फिर इसका हल क्या है? मैंने कहा बेटे हल भी बताते हैं तुम्हें, वाह, 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 तुम थोड़ा सब्र तो करो ना। तुम तो वैसे ही जज्बाती हो, कमरे में बैठ के गरम लुकमा खा लिया, तेरा मुंह जलने लग गया और तुमने क्लिप बनाना शुरू कर दिया। वो थोड़ा ठंडी करके खा मेरे बेटे। और वो ये है, इसका जवाब सुनिए। इसका जवाब ये है, बेशक बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिज़ी हो, नसाई हो, एनी वन कोई किताब हो, उसके अंदर जो चीज आती है बकायदा उसकी तफ्तीश होती है। तफ्तीश के बाद उसको कुरान पर पेश किया जाता है और जो अहादीस सही है उन पर पेश किया जाता है। अगर मुताबिकत हो तो कबूल है, वरना हुक्म होता है कि ये ज़ईफ है या मौजू है, उसका हुक्म बयान हो गया। तो फिर ये कहना कि इस किताब में ये है, इसमें ये है, भाई हुक्म हमने बयान कर दिया, किताब में रहे, ये तो अच्छा है ताकि आने वालों के लिए आसानी रहे कि जब कुरूने ऊला की किताबों में लोगों ने इतना कोई दाखिल कर दिया है तो आजकल के बुजुर्गों की किताबों में क्यों नहीं दाखिल हो सकता है। अल्लाहु अकबर। जैसे हम उन चीजों को नहीं मानते और कह देते हैं ये मौजू है या फिर ज़ईफ है, इसी तरह हम इन किताबों के बारे में भी कहते हैं कि या ये इल्हाकात हैं, मौजू हैं, या फिर ये ज़ईफ है। इस बात की कोई असल नहीं है। अगर कुरूने औला की किताब में कोई बात तावील वाली हो तो हम तावील कर देते हैं, बुजुर्गान दीन की किताब में कोई तावील वाली बात हो तो हम तावील कर देते हैं। अगर ना हो तो जैसे उन किताबों में कोई ना कोई बातें ऐसी हैं और आज तक मौजूद हैं और नहीं निकाली और तुम शोर नहीं मचाते, निकालो इमाम मुस्लिम की किताब से ये, निकालो बुखारी से ये, निकालो मुस्लिम से ये, तो फिर अगर वहां मौजूद हैं तुम कहते हो हुक्म बता दिया इतना ही काफी है, तो हम भी हुक्म बता रहे हैं जितनी किताबों में जो कुछ है वो अगर कुरान और हदीस से मैच कर जाए, सुभान अल्लाह नहीं करता तो आप शोर क्यों मचाते हैं। ना वो बुजुर्गों की तालीम थी और ना ही उसको कभी हमने लोगों के सामने पेश किया है और ना ही उसको तालीमात का हिस्सा बनाया है। और हम जब पेश ही नहीं करते तो आप कौन है जो किताबें खोल खोल के कौम को बदजन करने की कोशिश करें। आपके अंदर ये अखलाक की जुर्रत ही नहीं है कि आप ये बता सकें कि कुरान उला की किताबों में अगर कुछ छेड़छाड़ हुई है तो इन किताबों में तो बहुत ज्यादा हो सकती है। जैसे उन बातों को दलील नहीं बनाया जा सकता और उन शख्सियात पर इतराज नहीं किया जा सकता, इसी तरह इन चीजों पर भी इतराज करके इन शख्सियात पर इतराज नहीं किया जा सकता। वाह 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 वाह, कमाल।